and warm noon to all present here. Our honored management, director sir, invitees, dispersed teachers, and of course our starting students. I Shivani Singh, HOD of Somani College of Pharmacy, on occasion of the International Labour Day and birth anniversary of Swatantrata Senani R.D. Somani ji, as we all are familiar, in recent week, the coronavirus pandemic has had a huge impact on the event. The need for social distancing and self-isolation has meant that bringing large groups of people together is not visible right now. So we have made the decision to postpone offline event, but it is important to communicate and enjoy Mission 2021 with our well-wishers in a way that is active and comfortable. I would like to introduce a little introduction of our chief guest to grace this wonderful event as Honorable Shri Om Birla ji, Speaker of Lok Sabha, has joined us virtually. We welcome him with our management team and on the behalf of Somani Educational Institutions. We have our management team, Founder President Shri Vijay Somani, Sir, Mrs. Manju Somani ma'am, Advocate Shri Vishal Somani sir, Advocate Shri Parivartan Arya Somani ji. I welcome you all on the behalf of our team on this occasion. We also have principals of various colleges and schools among us. Welcome you all in this occasion of the behalf of Somani Education Institutions. Now, it's time to lamp lighting ceremony. So, like the great philosopher once said, the function of the prayer is not the influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Now, I would like to welcome Ms. Shagun to pray for us. Can we have a big round, please? Thank you so much, Shagun. We all feel blessed here. Before the launch, let me first acknowledge the presence of some of our eminent guests. Now, I would like to invite Dr. Indeed to formally welcome the gathering. Kindly mute the mic, please.
have sent their wishes through written, audio and video messages. Our most respected founder president of Somani Educational Institution, Sri Vijay Somani sir, respected Vishal Somani sir, advocate, lead partner SSRDS and partners law firm and like member Supreme Court of India Bar Association. Arya ji, Chairman Think Conic Exports, Director Professor YPC sir, Deputy Director Sri Abid sir, all principals, invited guests, alumni, all the faculty and staff members, print and electronic media people, parents, our young, energetic and talented students of Somani Educational Institution, Rewari, and other dignitaries present on this auspicious occasion. I am extremely privileged to take up this opportunity to address you all on this occasion for celebrating International Labor Day and birth anniversary of Swatantrata Senani R.D. Somani ji and annual function today. It is an honor for me to deliver my welcome speech on this auspicious occasion. Somani Educational Institution was established in the year 1999 in memory of Swatantrata Senani Sri R.D. Somani ji, when there was a huge demand for higher education in South Haryana. Students from 19 different states are taking their education from this institute. At present, Somani Educational Institution is the first choice amongst students from all over the state. The college offers courses in pharmacy, technology, management, vocational, etc. The campus is spread in 25 acres and is very green and eco-friendly. Even students from different countries prefer to take admission in this institute. In the past 20 years, thousands of graduate and postgraduate students have passed from this institute, and passed out students are holding good position in reputed government organizations and multinational companies in India and abroad, and signing name of institute, parents, society and country. Very soon, our college is going to start various courses like LLM, mass media, DMLT, so that students who are willing to study these courses do not need to go far away. The college is situated on Delhi-Jaipur highway NH48, which is 90 km away from Delhi NCR. During COVID-19 pandemic, seeing the economic situation of financially weaker students, Swatantrata Senani R.D. Somani ji Management Committee has taken initiative to offer 40% scholarship in academic session so that no students remain deprived of education due to lack of money. By this favor, many students could take admission in this institution. Today, we have assembled here to celebrate the International Labour Day at our college. It is prayed yearly on 1st May to celebrate the difficult work and devotion of works towards the association independent of their capacity and position, jobs and obligations. Work Day is a respect for the social and monetary accomplishments of the labourers. Work Day is otherwise called May Day or International Workers' Day and is praised as a national holiday in nearly 80 nations. It is perfect world that comprises yearly and national affirmation towards the labourers, dedication and commitments who guarantee the thriving quality and prosperity of the nation. International Labour Day falls on 1st May. It is a global event that all the countries in the world celebrate together.
there is a reason behind celebrating the International Labor Day in the entire world. It was 1st May in 1886 and some workers in Chicago, America were on protest. They were protesting against work for 8 hours for them in those days. Suddenly, a person from somewhere threw a grenade on the crowd of the workers protesting there. The police, sensing the danger, fired at the crowd of workers. This incident took the lives of many workers as well as policemen. On the first meeting of Congress in 1889 in Paris, Sir Raymond Levy put a proposal of celebrating International Labor Day. In the memory of the event, after the 2 years in 1891, the proposal was accepted and the event became the International Labor Day to be celebrated in the whole world. Our college gives the most extreme significance to each worker's difficult work and has confidence in giving them equivalent rights. I am related to this organization from long time and I have not seen over a single issue or complaint that is reported with the topic of people's work privilege. As we all know that if there are no stars, there wouldn't be any beauty in the sky. If there is no difference of opinions, there wouldn't be any creative and innovative idea. Similarly, if there is no annual function in our college, there wouldn't be any chance for our young, energetic and talented students to uphold the pride and honor of our college, to catalog the challenges we faced, the endeavors we made, and the success we achieved, and to show what we were, what we are, and what we will be. Today, I am much privileged to stand before you to extend profound wishes and greetings from the bottom of my heart, to bring the warmth of our affection through the stream of love, to welcome each and every one of you. It is first day of the year to exhibit the talents of all our young students, to bring your kind notice, your academic excellence, and the medals you bagged in your outstanding performance in sports, and the grades you achieved in extracurricular activities, and in everything you speak and perform today as the International Labor Day and birth anniversary of Swatantrata Senani R.D. Somani ji, and annual function unfolds. Dear students, you are the future of our society and our country. Brilliant faces that you are witnessing today, receiving awards, exhibiting your talents, will grow up and will definitely will be the citizens of our beloved nation tomorrow. You may grow up to achieve great success, name and fame, as well as high human values. We wish you all to be a good human beings and make this world a better place to live in. We are feeling proud in saying that the talent you will display here today will reflect your true potential to become worthy citizens of our society. Education is about far more than what happens within the four walls of a classroom. We all are gathered here on this auspicious occasion to motivate and inspire the young, energetic and talented minds to showcase your talents. This is a highly important occasion for everyone. It is because of that, apart from the fact that this celebration highlights our college's continuous success in the area of education, as well as we all together working hard with determination and trying to fulfill the aim of Swatantrata Senani R.D. Somani ji, who had dreamed to make this institution at #1 positions in all over the country in the field of education. We are continuously working hard and hopefully we will fulfill the aim of our Swatantrata Senani R.D. Somani ji.
We are extremely happy to have you with us today to share in our joy and delightful moments of the day and to be part of what we are. Wishing you all once again a happy and cherishable time on this great occasion. Now, I express gratitude on behalf of Somani Educational Institutions to all dignitaries for your kind presence on this auspicious occasion. Thank you so much, thank you. Next performance is a dance performance. Please, I request to all again, please don't unmute your mic, please. Thank you so much, a brilliant student, Mr. Manjeet. Now, I would like to invite
our Principal of Government School Bikaner, Shri Dr. Manoj Kumar ji. नमस्कार, मैं सोमानी इंस्टीट्यूट्स को बधाई देता हूं कि वेटरन फ्रीडम फाइटर ऑनरेबल श्री आर.डी. सोमानी जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम लेबर डे के रूप में मना रहे हैं। श्रमिक दिवस या यूँ कहें कि कामगार दिवस का सही मनाने का औचित्य हमारा तभी है जब हम श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन रोक सके। मुख्य रूप से पेड सैलरी उनकी हो, दूसरा जो वीकली ब्रेक्स हैं वो उनको मिले, और साथ साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन जो आज देखा गया है वो ना हो। तभी हम ये कह पाएंगे या आज का जो श्रमिक दिवस है उसको मनाने का जो औचित्य है वो हमारा पूरा होगा। मैं सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोमानी में स्टाफ है, साथी हैं, उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से वो विश्व को जागृत करते रहें, चाहे वो अधिकारों की बात हो चाहे कर्तव्यों की बात हो। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। I would like to play our dance performance next. Please welcome Mr. Narendra.
you, Mr. Narendra. I, Dr. Nitin Puchal, Director R&D, welcome our most respected Chief Guest, Lok Sabha Speaker, Government of India, Shri Om Birla Ji, respected Minister, Government of India, Shri Purushottam Rupala Ji, respected Vice Chancellor of MDU, Shri Rajbir Singh Sir Ji, officers of AICT, respected Founder President of Somani Educational Institute, Shri Vijay Somani Sir Ji, Shri Vishal Somani Ji, Advocate and Vice Chairman, Shri Arya Sir Ji, respected Director, Shri Professor YP Singh Sir, respected Deputy Director, Shri Amit Kumar Ji, my dear faculties, staff, media persons, and dear students. We are conducting this program on a virtual mode, and we have received the greetings and blessings of respected Om Birla Ji, who has given a vision for upcoming country, developing the upcoming country using the skilled labor and engineers. I thank you, sir, very much for your guidance. Today we are celebrating the International Labour Day, birth anniversary of Swatantrata Senani R.D. Somani Ji and College Annual Day. On this occasion, I take opportunity to share the progress report of our institute, Somani Institute of Technology and Management, SITM. This SITM, Somani Institute of Technology and Management, is the oldest engineering college of this region, which has been imparting education since 2001. It offers courses in BTech, MTech, MBA, BBA, BCA, and Diploma in Vocational Courses. Now the country is battling with the COVID crisis for past 1 year. In spite of difficult time, our faculties took all efforts to reach out the student and help them out in completing their syllabus, which resulted in very good scores, grades by the students. We have very qualified faculties from PhDs from government institutes. Now, as our mission is to serve the society, our magnanimous management during the COVID time has taken initiative to offer scholarship even up to 100% to the meritorious and financially weak student. SITM, we are proud of generating 6,000 plus alumni who are working in India and abroad with the reputed MNCs and government sectors. This is by the efforts of our TNP and the cooperation of students. We at Somani Institute focus on the industry requirement, current industry requirement, and train students accordingly. We are launching new courses in artificial intelligence, data mining, machine learning, so as to equip them as per the current industry needs. Also, for maintaining the quality standards, we are working towards NAAC accreditation. At the end, I would again wish and thanks all of you for patience listening, and from the core of my heart, I would offer my thanks to everyone. Thank you very much. Welcome to our next dance performance. Please welcome Miss Anuj from second year. मेरी छड़ छड़ बोले तांगड़ी पटियाला जुत्ती हो, मेरी छड़ छड़ बोले तांगड़ी पटियाला जुत्ती हो, मेरे गाड़े रंग के तमड़ किया झोल कसुती हो, मेरे गाड़े रंग के तमड़ किया झोल कसुती हो।
lovely performance. Now, I would like to welcome our Colonel Soumya Batra sir from Government Sainik School. So please welcome and deliver a beautiful speech and message to all of us. Please, sir, please welcome to Colonel Soumya Batra sir. Yeah, good afternoon, everyone. I really deem it as an honor and privilege for being a part of this annual function of Somani Educational Institutions. I, at the outset, firstly convey my felicitation and congratulations to the entire staff, management, and students of the institute for celebrating the annual function as well as the birth anniversary of Swatantra Senani, Mr. R.D. Somani, and also the International Labor Day. Since the students of engineering courses, pharmacy and management courses are here, I would just like to mention that we are going through a little tough time. The entire world is going through it. But I'm sure these days we will overcome this time, and good days are just at the threshold. They are coming back. But your course and knowledge and education which is on, this has to be given a priority because these days of training will not come back. So when in days to come, you face interviews or you go and try to get a job or do something in the outside world, maybe that time this knowledge of academic knowledge or the professional knowledge which you are supposed to acquire at this stage will be of very, very importance. So what I find in many of the students that they see, like I'm a principal of a school, the students are not taking this online education or whatever academic training is going on very seriously. Many a times the examinations which are on are also online. So we are not being able to test the students at the level which we are supposed to do. But this training or the education which is going on is of utmost importance. So the students must take it very seriously so that in days to come when this knowledge will be tested, not today because you are in online mode, but tomorrow maybe this knowledge is tested for some interview, through some examination. That time it will be difficult for you if you don't pay your due attention now at this juncture. Secondly, being a part of this uniform, I would also try to convey this message that Army also gives you a very lucrative opportunity across the country. So all those engineers, MBAs and other students who wish to join the services have an opportunity to do it after they complete their engineering degree. And there is a special entry in the armed forces as well as in the Air Force and Navy only for engineers who complete their Bachelor of Engineering or BTech or BE from a reputed institute or from a recognized institution. And after that, without any entrance test, you can straight away appear for the interview and start your career in the armed forces. Those advertisements are out in Employment News and other media. I'm sure you are there in the internet also. So those information I'm sure are with you. So you can apply for this job once you complete your engineering, and it will give you a very challenging and lucrative career at par with your corporate jobs which you go for. So that option is also there for every engineer or even for MBA aspirants. After they complete their graduation in their respective fields, they can apply for the armed forces, both all three services, Army, Navy and Air Force, when the advertisements are out, and try to go for this career which is equally challenging, adventurous and lucrative in all respects. Lastly, this
engineering degree or MBA or professional degree, whatever you are pursuing, I would like to tell you that it's a choice which we have made, and in days to come, you will find that you have made a wonderful choice. Please don't look back, or many a time I see students thinking that whether they have done it right or wrong. But I think that juncture is over and you have made a choice, and you should just move forward. Whatever choice you and your parents have made are one of the best choices. And in days to come, it will reap a lot of benefits for you all. Whether you are an engineer or you are a pharmacist or you are a management, you are in the management, does not make a difference. The main difference which is made is that whether you are a very good human being or not. And that will be of utmost importance. So along with your professional career, please build up your other aptitudes through your co-curricular and extracurricular activities, and you will find that you are able to contribute to the organization, whether be it in the army or in a corporate sector, in a much better way if your other acumens along with your professional caliber is also at par. So please also give due importance to this through reading books or whatever way you want to, and you will ultimately see that success is just within your reach. So all the best, do very well, and I would like again to convey my gratitude to the management of the institute who have invited me and given me an opportunity to interact with you on this platform. Thank you very much. So much, sir, for your inspiring and valuable message. I hope our students will follow your thoughts to the coming platforms. Thank you so much, sir, once again. Jai Hind. So our next performance is act performance on our pandemic situation. You all know that our today's time is for Corona. Okay. अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे डॉक्टर साहब आजकल एक बीमारी फैल रही है ना, जो टीवी पे दिखा रहे बार बार, जिसका नाम कोरोना है, एकदम खांसने छींकने से फैल रही है और इससे काफी लोगों की मृत्यु हो रही है और ये लगभग पूरे विश्व में फैलती जा रही है। डॉक्टर साहब क्या है ये बीमारी? You are right. पर हर छींकने में खांसने वाले व्यक्ति कोरोना पेशेंट नहीं होता। साथ ही छाते में खांसते वक्त मास्क या रुमाल का उपयोग अवश्य करें। वह खुली जगह पर छींकने में खांसने से बचना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, छींकते हुए खांसते समय मुंह को ढककर रखूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब, छींकना व खांसना तो सामान्य लोगों को भी हो सकता है, इसमें कोरोना जैसा क्या है? कोरोना में जैसे कि जुकाम, बुखार, गले में खराश, खांसी, ये सभी लक्षण कोरोना के लक्षण हैं। साथ ही जैसे नखों का रंग बदलना, आंखों में सूजन, ये भी कोरोना के कुछ नए लक्षण हैं। अगर ये सभी लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो तुरंत रास्ते हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और मास्क अवश्य पहनें। डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या सभी को हो सकती है? ये बीमारी सभी को हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो भारी यात्रा से लौटे हो या विदेश यात्रा से लौटे हो, या वे लोग जिनकी उम्र 60 साल या से अधिक हो, या वे लोग जिन्हें शुगर, बीपी व हार्ट प्रॉब्लम्स व हार्ट डिजीज हो, इन्हें प्रॉब्लम अधिक होने का खतरा होता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इसका जांच व इलाज कहाँ और कैसे हो सकता है? कोरोना की जांच व इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित हॉस्पिटल्स में लैब्स में की जाती है। साथ ही कोरोना के पेशेंट को अन्य पेशेंट से अलग रखा जाता है। वह कोरोना के संपर्क में आए हुए लोगों को घर पर 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाता है। वह डॉक्टरों का आदेश का पालन अनिवार्य होता है। डॉक्टर साहब, इसके जांच और उपचार क्या है? कोरोना के इलाज और उपचार जैसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखना, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह या धार्मिक स्थल पर जाने से बचना, मुँह अपने आप को बार बार छूने से बचना, वह हाथों को रेगुलर धोते रहना, हाथों को साबुन से धोते रहना, वह हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोए, वह मास्क या सैनिटाइजर का अवश्य प्रयोग करें। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अंकुरित भोजन लेना, व संतुलित भोजन लेना, व फल फ्रूट खाते रहना, यही कोरोना के लिए बचाव है। और सतर्कता ही हमारे लिए सबसे बड़ा बचाव है। ध्यान रहे 2 गज की दूरी और मास्क जरूर। Thank you so much, our second year students. This is very a valuable message to all of us. So keep distance and maintain hygiene and healthy also. So I would like to invite our next performance. It is the dance performance by Miss Shagun.
ओ मेरी सासुगी भर ले पानी। आज कहीं का हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो। एक खाली नींद बन जाएगी आज ना रहूं दे तो कोई परेशान कर रहा हूं। तेरे के मुझे बिजली पड़ा है तू किधर जागी मैं चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथों में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूमना सबका ढूंढना कसर खालूंगी बावन गज का कमर पे रमण टच चलूंगी बावन गज का कमर पे रमण टच चलूंगी। गाँव में होवे गाज हुड़का जुत्ती मुड़कर हारी पहराएगी बहुआ में टकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की घूंटी गले में हार डालूंगी बावन गज का कमर पे रमण टच चलूंगी बावन गज का कमर पे रमण टच चलूंगी। झुमके कान्हा जीने लाड़े मोटा पैना से कोका टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी पे मुक्का छोटी नु बोले ढूंढी गैर हालूंगी बावन गज का कमर पे रमण टच चलूंगी बावन गज का कमर पे रमण टच चलूंगी। मेरा पलंग मावे चोखे लाड़े चुंदड़ में सितारे मुकेश चाची तेरी कलमियां लिखेगी तो प्यारे होठों पे ढले अखा काजल डालूंगी बावन गज का कमर पे रमण टच चलूंगी बावन गज का कमर पे रमण टच चलूंगी। So much, Miss Shagun. You entertained me a lot to all of us. So our next performance is Sudhama and Krishna Act. Please welcome our SITM students. Thank
invite Professor Dr. R.S. Rathore, sir. Sir, are you present here? Professor R.S. Rathore, so is working as a professor and a registrar of policy planning and research in Shri Vishkarma Skill University, Haryana. He had earlier served as Director Skill Development AICTE Delhi from 2009 to 2018. He has also served as a Regional Officer AICTE NWRO Chandigarh. So I would like to invite Professor R.S. Rathore, sir. So please deliver your valuable words to all of us. Thank you very much, Dr. Shivani. सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा सूत्र स्वतंत्रता सेनानी माननीय श्री R.D. सोमानी साहब, जिनके मार्गदर्शन, जिनके थॉट प्रोसेस के कारण एक इतने समृद्ध शैक्षणिक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था को संचालित करने वाले प्रबंधन मंडल के सदस्य श्री विजय सोमानी साहब, श्री विशाल सोमानी जी, मैनेजमेंट टीम के अन्य सदस्य, इस महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम तो मैं आप सबों का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत प्रफुल्लित भी हुआ जब मैंने ज्वाइन किया उस समय, और उसके बाद जो 2 प्रस्तुतियां चल रही थी, विद्यार्थियों ने इतने बेहतरीन तरीके से इस तरह के मंच पर, इस मीडियम पर अपनी प्रस्तुतियां दी, वो उनकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो जो भी विद्यार्थी इन सभी कार्यक्रमों में जुड़े हैं, वो विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया। जैसा कि मुझे पहले सूचित किया गया था कि ये कार्यक्रम एक ऑफलाइन कार्यक्रम होगा जो कि महाविद्यालय परिसर में संचालित किया जाएगा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने आखिरी क्षण पर शायद ये निर्णय लिया कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में स्विच ओवर कर दिया जाए। एक ये मोड परिवर्तन सिंपल एक बटन नहीं है, इसके साथ बहुत सारे लॉजिस्टिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी तकनीक भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन आप लोग क्विकली इस तरीके से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने अपने आप को ट्रांसफर किया, और न मात्र ट्रांसफर किया परंतु इतने अच्छे तरीके से आप इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हर्ष थोड़ा सा इसलिए भी बढ़ जाता है जब अगर आज का समय देखते हैं, जहां सब और सर्वत्र अगर देखें तो नकारात्मकता जिसे कहते हैं, निगेटिविटी जिसे कहते हैं, वो सब तरफ अगर निगेटिविटी का संचार हो रखा है, उसके जेन्युइन रीजंस हो सकते होंगे, लेकिन अगर हर तरफ एक निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रखा है इस कोरोना जैसी महामारी के कारण, और ऐसे निगेटिविटी के बीच में अगर कुछ खुशी के पल, कुछ पॉजिटिव थॉट सबों के साथ साझा किए जाए, तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में इस महासंग्राम में लड़ने का एक उठा योगदान है। और ये महाविद्यालय जिस तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है, वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जब हम बात कर रहे हैं, इस महामारी की बात करते हैं, कोरोना संकट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि संकट ने आज
एक चीज तो बहुत स्पष्ट कर दी सबों के सामने, सबों के मस्तिष्क में, कि जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति के दो अलग अलग स्वरूप हैं, एक बाह्य स्वरूप, एक आंतरिक स्वरूप, एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल या इटर्नल ब्यूटी जिसे कह सकते हैं। हम लोग वाकिफ जनरली जिस चीज से हैं वो एक्सटर्नल ब्यूटी से हम वाकिफ हैं, वो भले ही शारीरिक क्षमताओं की बात हो या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर एक मानव की बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक हमारा बाह्य स्वरूप है जो कि लोगों को दिखता है, जिसमें हमारे सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, जिसको कि लोग देख सकते हैं और उसके कारण हमारी एक पहचान बनती है। लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम को ड्राइव, जो हमें बाहर दिख रहा है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को अगर ड्राइव करता है तो वो एक आंतरिक सिस्टम है जो कि इसको ड्राइव करता है, जो कि इनविजिबल सिस्टम है, वो जनरली दिखता नहीं है। परंतु आज का ये जो काल है, इसने हमें अपने आप के अंदर झांकने के लिए मजबूर किया कि अंदर हमारे क्या है जो कि इस सिस्टम को चला रहा था। हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे कि किस तरह से हमारे किस तरह से हमारा हार्ट काम करता है, हमारे अंदर के जो कलपुर्जे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और ये वही कलपुर्जे हैं जिसके कारण कि हमारा बाह्य स्वरूप जो दुनिया को दिख रहा है वो आज है। कहीं ना कहीं हम लगातार अपने इंटरनल सिस्टम को भी नेग्लेक्ट करते रहे, परंतु आज की इस परिस्थिति ने हमें अंदर झांकने का एक अवसर प्रदान किया कि हम जो भी हमारे अंदर अंतःकरण में जो भी चीजें हैं उनका एक बार आत्मावलोकन करें, उन सबको देखें, और सारी चीजें व्यवस्थित हैं, अपने स्थान पर कार्य सुनिश्चित कर रही हैं, उसको भी एक बार एंश्योर करें। ये तो ह्यूमन बॉडी की बात हो गई। सिमिलरली अगर हम देखते हैं बाकी कोई भी अगर संरचना बनती है, कोई भी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारे स्ट्रक्चर में इसी तरीके से ये दोनों तत्व, ये दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमें जो कुछ भी दिखने के लिए बाहर दिखता है, अगर एक बहुत सुंदर मशीन बनी हुई है या बहुत एफिशिएंट, सुंदर तो नहीं कहना चाहिए, एक एफिशिएंट मशीन बनी हुई है, वो मशीन की जो वर्किंग है वो वर्किंग हमें खाली दिख रही है, लेकिन उस मशीन को बनाने में जो प्रयास किए गए वो प्रयास जनरली हम लोगों को नहीं दिखते हैं। एक बिल्डिंग है, हो सकता है वो बिल्डिंग हमें दिख रही है, खूबसूरत से खूबसूरत बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग की हम सराहना कर सकते हैं, परंतु उस बिल्डिंग को बनाने में जिसका भी योगदान रहा होगा, जिसने भी सहयोग किया होगा, वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंपोनेंट जनरली सराहना के इस दौर में शामिल नहीं होता है। हम लोग खाली एक्सटर्नल ब्यूटी की तारीफ करते हैं और इंटरनली जो भी तत्व उसके साथ इन्वॉल्व थे, जनरली हम लोग उसको, इन जनरल ह्यूमन परसेप्शन है ये, कि उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो जो तत्व है, उन तत्वों का भी समय समय पर स्मरण किया जाए और उन्हें यथोचित सम्मान दिया जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वापस उसी उदाहरण पर आता हूँ, एक बिल्डिंग है, एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को बनाने में कितने तरीके के रिसोर्सेज लगे होंगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन से लेकर उसको बनाने में जो कारीगर लगे होंगे, उसको बनाने में अलग अलग तरीके के जितने भी कुशल कामगार लगे होंगे, उनका एक बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। और अगर वो योगदान न रहा होता तो कोई भी खूबसूरत संरचना नहीं बन सकती थी, भले ही वो, मैंने कहा, ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो। तो वो एक ऐसा तत्व है जिसको कि विजिबल नहीं है, आउटर वर्ल्ड को विजिबल नहीं है, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और उस तत्व जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सारी एक्टिविटीज में, फिजिकल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व है, वो तत्व है हमारे कुशल कारीगर, हमारे कुशल एम्प्लॉइज जो कि बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर
जो कि माननीय श्री R.D. सोमानी साहब के संस्मरण में बनाया जा रहा है, और साथ के साथ आज ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी है। तो एक बहुत एप्रोप्रिएट समय है कि आज हम उन श्रमिकों को, उस क्लास को याद करें जिसके कारण कि एक जो एक्सटर्नल ब्यूटी है या जो एक संरचना हम देखते हैं जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए जो भी जिम्मेदार तत्व हैं उनको भी हम वही सम्मान दे सकें और वही उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकें। अगर हम देखें तो समाज में ये जो डिस्पैरिटी है दो तरीके की, हम दो तरीके की बात करते हैं। हम बात करते हैं व्हाइट कॉलर जॉब की, हम बात करते हैं ब्लू कॉलर जॉब की। ये डिस्पैरिटी क्यों समाज में निर्मित हो रही है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको कि आज जो युवा पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है उस युवा पीढ़ी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और आने वाला समय, क्योंकि ये आने वाला समय इस युवा पीढ़ी का समय है, इस आने वाले समय में किस तरीके से ये एक जो भेदभाव जैसी स्थिति, विशेष तौर पर अगर हम कहें तो जो डेवलपिंग नेशंस है, डेवलपिंग नेशन में इस तरह की जो एक स्थिति है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। व्हाइट कॉलर जॉब कहें और ब्लू कॉलर जॉब कहें, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। आज जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में इतना ज्यादा अंतर नहीं है। अगर वहां पर एक इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन भी अपना जब काम कर रहा है तो वो भी उतना ही सम्मानित है जितना कि एक डॉक्टर या प्रोफेसर उस समाज में रहकर काम कर रहा है। परंतु अगर हम अपने समाज की बात करते हैं तो हमने अपने अंदर एक कहीं ना कहीं एक खाई बना रखी है जो कि इस तरह के सेगमेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो अवसर हमें प्राप्त होते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे हुआ या आपके संस्था के, इस तरह के अवसर पर हमें कुछ न कुछ एक संकल्पना ये लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको दूर करें और ये जो डिफरेंस है इन डिफरेंस को दूर करें। नो डाउट कि आने वाला समय जो होगा, आने वाले समय में ये जो क्लास डिफरेंस है, ये क्लास डिफरेंस डेफिनेटली कम होने वाला है, क्योंकि आने वाला समय इंडस्ट्री 4.0 की अगर हम बात करते हैं कि एक नए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, वो नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है जिसमें कि सब कुछ ऑटोमेशन के बेस पर होना है, जिसमें सब कुछ IoT के बेस पर होना है, जिसमें सब कुछ मशीन लर्निंग के बेस पर होना है। अगर सब कुछ मशीन के बेस पर होना है तो उस मशीन को चलाने के लिए जो लेबर लगेगी वो भी हाई क्लास स्किल्ड लेबर होगी, वो बहुत ही टेक्निकल लेबर होगी जो कि BTech MBA या ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों के तौर पर यूज किए जाने वाले स्किल्ड रिसोर्सेज की लेबर होगी। तो ऑब्वियसली उस समय ये जो डेस्परिटी है, ये डेस्परिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। लेकिन आज के समय में जो ये डेस्परिटी का लेवल जहां कहीं भी दिखता है, तो मैं इस जो युवा पीढ़ी यहाँ पर प्रेजेंट है उस युवा पीढ़ी से आह्वान करूंगा कि कम से कम उस डिस्पैरिटी को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम अपने लेवल पर, एक बराबर, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, अगर हम देखते हैं उन सारों को एक जैसा देखें, एक जैसा सम्मान प्रदान करें, इस समाज में एक समरसता की भावना स्थापित करें। इसी दिशा में चलते हुए जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूँ, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जहाँ का मैं अभी कर्मचारी हूँ, इस यूनिवर्सिटी ने इसी विचारधारा को सुदृढ़ करने का एक प्रयास किया। किस प्रकार से प्रयास किया कि जितने भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, आज इस विश्वविद्यालय में आपके बहुत नजदीक है, गुड़गांव से हम संचालित कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये पलवल डिस्ट्रिक्ट से संचालित होगा, परंतु आज हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से संचालित कर रहे हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय है ये भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा सरकार ने स्थापित की है। इस विश्वविद्यालय में 4 अलग अलग संकाय, 4 अलग अलग फैकल्टीज के माध्यम से कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फैकल्टी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। उसी प्रकार मैनेजमेंट फैकल्टी के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर तथा अप्लाइड साइंस और ह्यूमैनिटीज। तो ये 4 अलग अलग वर्टिकल्स हैं। इन 4 वर्टिकल्स के अंतर्गत हम आज की तारीख में
ऑलमोस्ट 27 से 28 कोर्स चला रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। सारी यूनिवर्सिटीज कोर्स चलाती है, आपका महाविद्यालय भी कोर्स चला रहा है। इसमें डिफरेंट क्या है या बताने की बात क्या थी, उस पॉइंट पर खाली आता हूँ कि मैंने कहा कि ये जो एक स्किल यूनिवर्सिटी है ये वो काम कर रही है कि किस तरह से डिस्पैरिटी को कम किया जाए। डिस्पैरिटी तभी कम होगी जबकि हम भी उस क्लास के साथ, हम रहना व्हाइट कॉलर चाहते हैं, लेकिन अगर हम ब्लू कॉलर के साथ मिलकर अगर काम कर सकते हैं तभी हम उनकी भावनाओं को, उनके पेन पॉइंट्स को, उनके स्ट्रगल्स को समझ सकते हैं। हमने अपने विश्वविद्यालय में क्या किया कि जितने भी कार्यक्रम संचालित होते हैं, इन सारे कार्यक्रम में इनवेरिएबली इंटर्नशिप जिसे बोलते हैं, वो सारे कार्यक्रम में 50% टाइम को हमने एज इंटर्नशिप के तौर पर कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार्यक्रम हम चलाते हैं मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग का अगर 3 साल का कार्यक्रम है तो half of the time, means almost 1.5 year, that student is on internship. If he is on internship, इसका मतलब ये हुआ कि वो विद्यार्थी उस समय अपने इंटर्नशिप के समय एक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाकर वहां जितने कामगार काम कर रहे हैं उनके टीम का एक सदस्य होकर उस टीम में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, भले वो प्रोडक्शन लाइन हो, भले वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो, भले वो असेंबलिंग लाइन हो, तो वो लगातार 1.5 साल तक उनके साथ मिलकर, उन्हीं क्लास के साथ मिलकर काम करता है। तो अगर इतने लंबे समय तक आप एक फील्ड में एक पर्टिकुलर क्लास के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो जो एक डिफरेंस था, थॉट का डिफरेंस था, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लेवल पर तो अवश्य कम होता है, क्योंकि जब हम उनके साथ काम करते हैं तो हमें पता है कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनके स्ट्रगल्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। तो ये एक माध्यम है जिस माध्यम से जो हमारा विश्वविद्यालय है वो इस सामाजिक डिस्पैरिटी को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग काम हो सकते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े काम हो सकते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल, हर एक युवा अपने तौर पर ले सकता है कि किस तरह से इस डिस्पैरिटी को कम किया जाए। और जो इंटरनेशनल लेबर डे हम मनाते हैं, जिसमें कि डिग्निटी ऑफ लेबर की जो हम बात करते हैं, उसको किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। तो मैं अपनी बात को वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बात पर एक बार पुनः एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि ये हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है, विशेष तौर पर इस युवा पीढ़ी का जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। मैंने आपको अप्रिशिएट किया शुरू में कि बहुत क्विकली आप लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन में चेंज किया। मीन्स एडॉप्टेबिलिटी जो है इस युवा पीढ़ी में, वो एडॉप्टेबिलिटी हाईएस्ट लेवल की एडॉप्टेबिलिटी है। अगर हम उस हाईएस्ट लेवल पर काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो बात मैं कह रहा हूँ डिस्पैरिटी की, उस डिस्पैरिटी को कम करने में आप सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते होंगे, आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते होंगे। तो ये जिस तरीके से हम कार्यक्रम संचालित करते हैं, कार्यक्रम मनाते हैं, खाली रिचुअल्स नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें हम लोग हर बार एक छोटा सा प्रण ले कि आज के दिन हम कम से कम एक काम करेंगे, एक इस तरीके का काम करेंगे, और कम से कम उसको एग्जीक्यूट भी करें। आपको जो आंतरिक प्रसन्नता होगी उसका अनुभव आप स्वयं कर सकते होंगे जब आप एक काम को एग्जीक्यूट करके प्रसन्न होते होंगे। तो इन्हीं के साथ मुझे एक बार पुनः जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने कि मुझे अवसर प्रदान किया आज आप लोगों के बीच आने का, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं फिजिकली आप लोगों के साथ आता, फिजिकली आप लोगों के साथ चर्चा करता, आप लोगों के कार्यक्रम को एंजॉय कर पाता, परंतु एक ऐसा संकट का समय चल रहा है जिसको कि सामूहिक रूप से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और जिसमें हम सफल भी होंगे। ऐसे समय में आप लोगों ने कुछ खुशी के क्षण निकाले, कुछ खुशी के पल निकाले, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। एक बार पुनः सोमानी साहब का, मैनेजमेंट का, पूरे के पूरे फैकल्टीज का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
साधुवाद और इस कार्यक्रम की और एक सफल संचालन के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। और एक शुभकामना यही कि सभी स्वस्थ रहें, जो भी बेसिक प्रोटोकॉल्स है उसकी पालना करते हुए खुद भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोसियों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सबों का। Thank you so much, sir, for your valuable and inspiring words to all of us. And I hope our management team, our faculty teams, and our students will follow your thoughts and come to our amazing platforms. Thanks a lot, sir, once again. Now, I would like to welcome our next dance performance. Now, we feel honored to have with us today in this function our Honorable Chief Guest Shri Om Bidla ji, Speaker of Lok Sabha, who hardly need an introduction. We feel delightedly by his presence. So please welcome our Shri Chief Guest Shri Om Bidla sir. By virtually he give us message to all. माननीय श्री विजय सोमानी जी, उपस्थित महानुभावों, साथियों, विद्यार्थियों, प्रोफेसर, अध्यापकगण, आपके संस्थान SITM के वार्षिक महोत्सव के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज आपके संस्थान के वार्षिक उत्सव के साथ साथ मजदूर दिवस भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं
कि इंजीनियरिंग और मजदूर का बड़ा संबंध है। हम दोनों मिलकर इस देश के श्रमिकों को अधिक काम मिले, उनके हाथ को अच्छा हुनर मिले, तकनीकी ज्ञान मिले, इसके लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के नाते हमारा दायित्व बनता है। मुझे बताया गया है कि आज ही प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री R.D. सोमानी जी की जन्म जयंती भी है। मैं उन्हें भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हमारे देश में तथा पूरे विश्व में कोरोना महामारी का संकट व्याप्त है। हमारा देश अभी इस महामारी के दूसरे वेव से गुजर रहा है। ये वेव पहले वेव से भी अधिक संक्रामक है, जिसके परिणाम स्वरूप देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में भी है। परंतु कठिन परिस्थितियों में भी हमारे कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सभी इस कोरोना संक्रमण के योद्धा पूरी ऊर्जा से इस महामारी से लड़ रहे हैं। हम सबको उनका हर प्रकार से सहयोग करने का दायित्व बनता है। हम कोशिश करेंगे कि सामूहिक रूप से हम इस कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब हो। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ संकट की इस घड़ी में आप सभी एकजुट होकर राहत और बचाव कार्य में सहभागिता करेंगे। मुझे विश्वास है कि सामूहिकता की शक्ति से और अपने दृढ़ संकल्प से हम इस लड़ाई में विजयी होकर निकलेंगे। हम सब इस लड़ाई में कोरोना नियमों का पालन करें। इसके लिए दिशा निर्देश के बारे में जन जागरूकता, जन जागरण फैलाएं और उस जन जागरण में हमारा भी योगदान रहे। ईच वन टीच वन तथा ईच वन सेव वन की भावना से कार्य किया जाए तो इस महामारी को हराना मुश्किल नहीं है। हमें सतर्क रहना है पर पैनिक नहीं होना है। आज इस कार्यक्रम में आपके शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थी भी उपस्थित है। आप विद्यार्थियों को तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा देने का कार्य करते हैं। मेरा मानना है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार एक प्रशिक्षित मानव संसाधन ही है, जिसमें शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आप इस देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं। आपके यहाँ के विद्यार्थी हमारे कल के वैज्ञानिक, प्रबंधक, राजनीतिज्ञ तथा खिलाड़ी बनेंगे और देश सेवा का काम करेंगे। अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों का मात्र कैरियर नहीं बनाती, बल्कि उसके चरित्र का निर्माण भी करती है। मित्रों, हमारा देश एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का देश है। प्राचीन काल के हमारे आचार्य अपने विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दिया करते थे। अपनी शिक्षा में वे हमेशा देश की अपेक्षाओं तथा परिस्थितियों का भी ध्यान रखने के लिए विद्यार्थियों को संरक्षण देते थे और उनको ज्ञान देते थे। उन आचार्यों का एक व्यापक जीवन दर्शन था। वे जानते थे कि युवा छात्रों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का ज्ञान, देश हित के प्रति उनका समर्पण का भाव और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी जागृति हो, इस दिशा में उनका ज्ञान रहता था। यही कर्तव्य हमको समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए निभाना है। आपको भी अपनी शिक्षा में इस संदर्भ को उचित स्थान देना होगा। अच्छी शिक्षा का उद्देश्य
एक आदर्श नागरिक और आदर्श मानव का निर्माण है। आज की स्थिति में देश को उच्च स्तर के टेक्निकल मैन पावर की आवश्यकता है। जैसा कि हमने देखा है वर्तमान कोरोना काल में किस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रिकॉर्ड समय वैक्सीन तैयार की और कोरोना के रोकने के कई सारी दवाइयाँ और कई उपकरण तैयार किए। इस प्रकार हमें अर्थव्यवस्थाओं को सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के साथ मानव संसाधन की भी आवश्यकता है। हमारी युवा शक्ति में असीम ऊर्जा है जो राष्ट्र के नवनिर्माण में काम आ सकती है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप जब अपनी पढ़ाई समाप्त करें तो आप नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले बने, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। देश के उद्यम, व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में अपार संभावना है। हमारे देश के युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार आप अपने नए विचारों, संकल्पनाओं को उद्यम का स्वरूप दीजिए। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी कई योजनाएं प्रारंभ की है, जिससे आपको आगे बढ़ाने में सहायता भी करनी है और उसको आगे भी बढ़ाना है। अंत में मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश की इसी तरीके से सेवा करते रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी संदेश दिया है जो हम सब जरूर उसको फॉलो करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू एक्नॉलेज द टैलेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। Student of the Year's award goes to Mr. Manjeet from second year and Mr. Mainpal from first year. Perfect attendance award goes to Mr. Jaswant from first year and Mr. Ankush from second year. Extra mile award goes to Anuj Dawa from second year. Star Rising award goes to Mr. Narendra from second year, Mr. Naveen from second year. Now let's have a look, please. Let's make the end of this formal function with a vote of thanks and appreciation and gratitude to all those who make this evening a grand success. I request Shri Vijay Somani sir to propose the vote of thanks. स्वागत
के विशाल सामने बैठे सभी प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सपोर्टिंग स्टाफ, हम और आप मिलकर मई 1 मई मजदूर दिवस संस्था का एनुअल फंक्शन और स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी जी का जन्मदिन, कई विषयों को लेकर आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देश के हालात जिस तरीके से पिछले 1.25 साल से बिगड़ते ही चले गए, कोरोना के नाम पर शासन प्रशासन के तरह तरह के आदेश, डॉक्टर और मेडिकल साइंस के लोगों का ठीक से भारत के लोगों को गाइडेंस न होते जो हालात बन गए वो बड़े दुखदायी। आज मैं बड़े भारी मन से देश के उन हजारों लोगों को जो इस महामारी में बेवक्त चले गए, गुरु तेग बहादुर जी को, जिनका आज जन्मदिन होता है, प्रकाश पर्व करके हम मनाते हैं, जिनकी वजह से आज ये देश हिंदू धर्म बचा हुआ है। मैं देखता हूँ उस इतिहास को, जब गुरुओं ने अपने बच्चों को धर्म को बचाने के लिए जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, और आज मैं जब देखता हूँ कि कदम कदम पर इंसान चालाकी से, झूठ से, फरेब से भरा हुआ है। सबको पता है कि नथिंग इज एवरलास्टिंग, सबको पता है कि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, लेकिन फिर भी हम लोग समाज, देश के उत्थान के लिए, जिस परिवार में जन्म लिया है उसके लिए, जिस संस्था के साथ हम मिलकर कार्यरत हैं उसके लिए, उस समाज के लिए जिसमें हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बढ़ना सिखाया, उसके लिए कहीं समर्पण की कमी नजर आती है। और मैं इस मौके पर क्योंकि सोचा तो ये था कि आज हमारे हजारों की संख्या में अलुमनाई होंगे, सैकड़ों की संख्या में हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे, देश के साहित्यकार, पत्रकार होंगे, और बहुत ही सुखद माहौल में हम लोग ये दिन मना पाएंगे। लेकिन ये जिंदगी है, ये जीवन है, ये चलता रहता है। कुछ लोग आगे, कुछ पीछे, कुछ दाएं, कुछ बाएं, यही जीवन है। इस जीवन में जो लोग आप लोगों की शक्ल सीरत में मेरे साथ है, मेरी संस्था के साथ है, मैं उन सबको आज के इस महान पर्व बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो कमियां हैं उनको पाटने का संकल्प आज आप लोग लें। सही श्रद्धांजलि, सही खुशी का दिन, सही पुनर्लोकन का दिन, सही अपने आप को समझने का दिन तभी होगा
जब हम सेल्फ असेसमेंट करें, जब हम ये करें कि मैं कौन हूँ, मेरा इस समाज में क्या है, मेरा इस संस्था में क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और फिर उससे आगे जब हम चलते हैं तो फिर टीम जो है, टीम यानी कि संस्थाएं जो चलती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के चलाने से नहीं चलती, किसी व्यक्ति विशेष के बनाने से नहीं बनती। संस्थाएं तभी चलती हैं, संस्थाएं तभी आगे बढ़ती हैं जब चाहे एलिजिबल लोग कम हों, काबिल लोग कम हों, पढ़े लिखे लोग चाहे कम ज़्यादा हों, लेकिन लॉयल लोग जरूर हों। लॉयल्टी किसके लिए? लॉयल्टी अपने काम के लिए, लॉयल्टी अपने साथियों के साथ जिनके साथ हम आगे और पीछे करें। हमारा मकसद आगे बढ़ना होना चाहिए, हमारा मकसद एक दूसरे को समझने का होना चाहिए, हमारा मकसद एक दूसरे को कोऑपरेट करने का होना चाहिए। जब हमारी टीम सही होगी तो ही हम स्टूडेंट को कुछ डिलीवर कर पाएंगे जो हमारे साथ साथ समाज का, देश का फ्यूचर बनने वाला है। बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं, इनमें हमारी 4 गुना जिम्मेवारी बन जाती है। बहुत समझदारी से चलने का समय है। इसमें मैं देखता हूँ कि लोग जिस ढंग के रोजमर्रा में समाचार आते हैं, रोज घटनाएं जो घटनाएं होती हैं, रोज लोग बेवक्त काल के ग्रास बन रहे हैं। ऐसे में लोगों को मीडिया की सुर्खियां देखकर घबराहट बनता है। लेकिन आप लोग एक बात जरा देखिए कि जिस व्यक्ति को जैसे जाना है, जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति का शिकार चला रहता है। लेकिन जब जो कुछ गुजरना है, जब जिसको जो मिलना है वो तय है। इसी ढंग से मौत भी एक तय शुदा समय का निर्णय होता है। कोई बिना वक्त न आ सकता है न जा सकता है। ये जो इस वक्त माहौल है, इसके बारे में मैं अपने साथियों को जागरूक करना चाहूँ